Hi guys, how are you? What's up? So, as you all know that my name is Jatin. On this YouTube channel Jatin's Lecture, I am providing you each and every solution of class 10th mathematics as well as a detailed concept study of class 10th science. So, please like, share and subscribe my YouTube channel right now if you have not done subscribed yet. And don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification. So today we are going to do transportation system part number 2. Yesterday means in previous video we have discussed about blood, components of the blood, that blood is made up of plasma and blood cells. Plasma is of 50 to 55% in the blood, whereas blood cells are 40 to 45% in the blood. So we have discussed them. Today we are going to discuss about blood vessels, about heart, that how they functions, what is the difference between all those things. So if you have any query regarding anything or any problem or any issue, please let me know in the comment section. And if you want to directly contact to me, please contact me on my Instagram ID. It is given in the description box. So let's get started. So let's begin that. Today we are going to study about this transportation. We all know that transportation is the movement of substances across from one place to another. So what we have discussed that transportation ways क्या होते हैं transportation के plants में, plants we have discussed animals में क्या होते हैं वो भी discuss कर चुके हैं हम blood के बारे में discuss कर चुके हैं, that blood is made up of two things, plasma and the blood cells. Blood cells are of three types: RBCs, WBCs and platelets. So guys, we have discussed all things in my previous videos. So today we are basically focusing on the blood vessels and the heart. So let's begin that. Begin. What are blood vessels? So guys, blood vessels are the pipelines, means the pipelines, pipes, मतलब किसी फ्लूइड को फ्लो करने के लिए हम पाइप का तो यूज करते हैं जिसके थ्रू वो फ्लूइड फ्लो करता है. सिमिलरली ब्लड वेसल्स आर द पाइपलाइंस इन आवर ह्यूमन बॉडी. पाइपलाइंस विच कैरी ब्लड. क्या होता है भाई इन पाइपलाइंस में? ब्लड. सो ये ब्लड वेसल्स होगी. अब ब्लड वेसल्स भी अपनी बॉडी में तीन टाइप की होती हैं. हाउ मेनी टाइप्स गाइस? थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज द आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. ये सब तो आपने सुना ही होगा अपनी लोअर क्लासेस में. सो पढ़ते हैं इनके बारे में. ब्लड वेसल, फर्स्ट वन आर्टरी, arteries, second one veins, and the third one are capillaries. So guys, अब ये तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब ये आर्टरीज क्या होती हैं? होती तो ये पाइपलाइंस ही हैं, बट अब ये पाइप, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज दैट आर्टरीज. Arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood. They carry oxygenated blood. Arteries क्या लेके जाते हैं guys? Oxygenated blood. So arteries are the type of blood vessels which carry oxygenated blood. क्या लेके जाती हैं guys? Oxygenated blood. और कहां से कहां तक लेके जाती हैं? From heart to बॉडी सेल्स. सो फ्रॉम हार्ट से वो टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. फ्रॉम हेड टू द लेग, फ्रॉम राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स. बट अब वेन्स क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो ये क्या करती हैं? ये. सो गाइस, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वेन से। पर ये कहाँ, ये इसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम सेल्स टू हार्ट। सो गाइस ये सेल्स से हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, फिर ये हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है, उसके बाद वो बॉडी सेल्स के पास आर्टरीज लेके जाती है। सो दिस प्रोसेस अकर्स इन आवर बॉडी। सो अब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, बाय द वे व्हाट डज दिस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस? अब इन एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे क्या मीन्स होता है? मतलब कुछ समझे नहीं इसका क्या मीनिंग होता है? दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज द नेम सजेस्ट दैट, हमें नेम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन है इसमें, मीन्स इट कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है और यहाँ पे डी ऑक्सीजन है, सो मतलब ऑक्सीजन की कमी, सो इसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा होती है। सो गाइस आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू टर्म्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैपिलरीज किस चिड़िया का नाम है? So capillaries are the nothing but they are the exchange site. So they are exchange site. Exchange site है where oxygenated blood gets converted into deoxygenated blood. So guys capillaries are the exchange site. क्या ये exchange site है जहां पर oxygenated blood is converted into deoxygenated blood. What does it means? It means that suppose ये अपनी आर्टरी, ये वेन्स, सो जहां पर वेन्स एंड आर्टरीज मीट, यहाँ पे सपोज ये आर्टरीज एंड वेन्स मीट कर गए, सो जो ब्लड यहाँ से आर्टरी से आया वो यहाँ पर, और ये वेन्स हो गई, सो यहाँ पर जो ब्लड आया यहाँ पे ऑर्गन है, सो ऑर्गन के पास ब्लड कैसे जाएगा? वो कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, थ्रू विच द डिफ्यूजन अकर्स। सो जो ऑक्सीजन होगा ब्लड में वो तो सेल्स ले लेंगे, एंड द सेल्स आफ्टर रेस्पिरेशन दे रिलीज CO2, सो CO2 अगेन ब्लड में आएगा और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया और ये वेन्स इसे अब वापस हार्ट के पास ले आए। सो गाइस आई होप यू आर क्लियर विद दैट capillaries are exchange site where oxygenated blood is converted into deoxygenated blood. So ये तो हो गया। अब ये चीज तो हमने देख ली कि ये ऑक्सीजन ये हार्ट से सेल तक लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और ये सेल से हार्ट के पास। अब और क्या डिफरेंस है इसके अंदर वो भी देखते हैं। दैट आर्टरीज है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, मीन्स हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड, सो प्रेशर भी हाई होगा, सो हाई प्रेशर। सो गाइस ये आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, बट वेन्स तो सेल्स से हार्ट के पास लेके जा रही हैं, सो प्रेशर लिट एज कंपेयर टू आर्टरीज बहुत कम होगा, सो प्रेशर लो प्रेशर। प्रेशर क्या होगा गाइस? लो। अब प्रेशर हाई है गाइस, प्रेशर हाई है तो वॉल्स भी तो थिक होनी चाहिए ताकि वो प्रेशर को कंट्रोल कर सके, सो थिक वॉल्स। थिक वॉल्स। अब यहां पे प्रेशर लो है तो वॉल्स थिन होंगी, थिन वॉल्स। अब ये थिन वॉल्स होगी गाइस। अब यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे लो है, सब लो प्रेशर में चांसेस है ना कि ब्लड का बैक फ्लो, यहाँ से ऐसे ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो प्रेशर कम है तो बैक फ्लो भी तो हो सकता है गाइस, सो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो बैक फ्लो हो जाए, इसीलिए यहाँ पे वैल्व्स होती हैं, वैल्व्स।
यहाँ पे वेल्स होती हैं, सपोज ये वेन अपनी वेन हो गई, सो यहाँ पे ऐसे वेल्स होती है, सो दैट जब ब्लड यहाँ से आगे मूव कर जाता है तो ये वापस क्लोज हो जाती हैं, सो दैट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड कुड बी प्रिवेंटेड। एंड वॉल्स यूनिडायरेक्शनल मींस वेल्व्स एक ही डायरेक्शन में खुलती हैं। अब यहाँ पे आर्टरीज में प्रेशर आई है तो इसकी जरूरत नहीं है, सो नो वेल्स। So guys, these are the some basic common differences between the arteries and guys. First one is arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Arteries take blood from heart to cells, whereas veins take blood from cells to the heart. Next difference is arteries have high pressure, whereas veins have low pressure. Arteries walls are thick and veins wall are thin. And the last one is that arteries have no walls because valves, because the pressure is high and the backflow of the blood is not possible. And whereas in the veins carry valves so that the backflow of blood could be prevented. So guys, ये था arteries और veins और capillaries के बारे में. So let's move forward on a human heart. Before moving to next, guys, you can have a snapshot if you want. So ले लीजिए स्क्रीनशॉट हमको चाहिए तो. So let's move forward. So now we are going to discuss about the human heart. अब हार्ट क्या होता है ये तो हमें सबको पता है कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है which pumps blood to all part of the body. So let's talk about heart. हार्ट के बारे में बात करते हैं. हार्ट क्या है गाइस? एक पंपिंग ऑर्गन है. पंपिंग ऑर्गन which pumps blood. So ये ब्लड पंप करता है गाइस हार्ट. अब हार्ट की पोजीशन क्या होती है? सो हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ thoracic cavity. सो गाइस हार्ट यहाँ पर होता है, मीन्स थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड पे होता है लिटिल बिट. सो अब इसका साइज क्या होता है? साइज होता है सेम एज फिस्ट साइज. मीन्स ये बंद मुट्ठी के समान होता है, मीन्स लाइक दिस. सो हार्ट का साइज अप्रोक्सीमेट इतना होता है. अब ये फंक्शन कैसे करता है? सो गाइस, आवर हार्ट हैव फोर चैम्बर्स. Four chambers means the four compartments, means four rooms where the blood flows. So ये हो गया अपना right atrium, no sorry guys, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. So guys, जो अपर पोर्शन एट्रियम होता है एंड द लोअर पोर्शन इज द वेंट्रिकल. सो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम. अब यहां पर हो गया लंग्स, ये हो गया बॉडी के सेल्स. अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड. अब किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन. अब मैंने तो कहा था कि पल्मोनरी वेन के थ्रू गाइस, बट आप सब कहोगे कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं. सो ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे लेके आई? गाइस सी दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन and the only artery which carry deoxygenated blood is a pulmonary artery. So यहां से आया ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड. अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. कैसे मूव करेगा ये? थ्रू बाइकस्पेट वॉल. यहाँ पे वॉल होगी गाइस, यहाँ पे बाइकस्पेट वैल्व होगी. यहाँ पे कौन सी वैल्व होगी गाइस? बाइकस्पेट. अब जो ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है, सो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड जाएगा सेल्स के पास. कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये
तो ये सेल्स के पास किसके हेल्प से जाएगा, कुछ तो पाइप्स के थ्रू जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ओर्टा। ओर्टा गाइस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट्स तक लेके जाती है फ्रॉम हार्ट इज कॉल्ड द ओर्टा। दैट मींस आर्टरी इज ओर्टा। सो अब सेल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स के पास है, अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा क्योंकि सेल्स ने रेस्पायर कर लिया। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया। अब ये ब्लड अगेन राइट एट्रियम के पास मूव करेगा। कहाँ पे जाएगा गाइस, राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम के पास कौन लेके जाएगा इसे, वेना कावा। वेना कावा कौन लेके जाएगा इसे, राइट एट्रियम के पास गाइस वीना कावा लेके जाएगी। अब जो ये ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचा है, अब थ्रू ट्राइकस्पेट वॉल, किसके थ्रू गाइस, ट्राइकस्पेट, थ्रू ट्राइकस्पेट वाल्व ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा गाइस। अब ये राइट वेंट्रिकल में मूव कर चुका है ब्लड। सो ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास चला जाएगा गाइस, लंग्स के पास। अब ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास किसके थ्रू जाएगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू गाइस, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सो गाइस ये तो आई होप दैट यू आर गेट क्लियर्ड विद इट दैट हाउ हार्ट फंक्शंस। सो एक बार रिपीट कर देते हैं दैट हार्ट, लिसन प्रॉपरली guys and be attentive while seeing this video. So हार्ट लंग्स है, अब लंग्स से ब्लड हार्ट के पास कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन गाइस। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, कहां पर लेके जाएगी, वो लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी हार्ट के। अब लेफ्ट एट्रियम से हार्ट डाउनवर्ड मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू बाइकस्पेट वॉल। अब बाइकस्पेट वॉल से वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होगा थ्रू ओर्टा। ओर्टा इज द आर्टरी मींस विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो वो ओर्टा के थ्रू जाएगा। अब आफ्टर सेल्स रेस्पिरेट करेंगे तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा कैपिलरीज में। फिर वेना कावा मींस दो टाइप की वेना कावा होती हैं गाइस अपनी बॉडी में, दैट सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है एंड इंफीरियर वेना कावा अपनी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। सो वेना कावा राइट एट्रियम में एंटर करेगी गाइस बाय टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इट। अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा गाइस, थ्रू ट्राइकस्पेट वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पेट वॉल्व होगी गाइस। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगेन लंग्स में जाएगा सो दैट इट गेट ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है उसको लंग्स से बाहर निकालने के लिए एंड ऑक्सीजन को लेने के लिए गाइस। सो वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स से अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ओर्टा के थ्रू सेल्स में, वेना कावा से राइट एट्रियम में, फिर ट्राइकस्पेट वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में, फिर अगेन लंग्स में। ये प्रोसेस चलता रहता है गाइस। बट बाय द वे ये हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है गाइस ये होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मींस लेफ्ट साइड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में, वेयर एज राइट साइड कंप्राइजेज ऑफ ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो एक ओवरव्यू सा था गाइस। सो एक हम हार्ट के प्रॉपर डायग्राम के साथ इसे समझते हैं दैट कैसे होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया, बट जो प्रॉपर हार्ट होता है वो कैसा होता है गाइस, नाउ वी आर सीइंग दैट। दोज जिनसे हार्ट बनता नहीं है मीन जिनकी ड्राइंग बहुत वीक है, दे कैन ट्राई टू मेक दिस, इट्स वेरी इजी दैट। सबसे पहले गाइस ऐसी शेप बनानी है। अब ये हार्ट की शेप बनानी है गाइस ऐसे। सो ये क्या बन गया गाइस अच्छे से बनाते हैं फिर से।
सो ये बन गया अपना हार्ट। हार्ट बन गया गाइस। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स और एट्रियम्स शो करते हैं। इट्स वेरी इजी डायग्राम गाइस, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। सो ये बन गया। अब यहाँ पे बाइकस्पेड वॉल्व होगी, यहाँ पे ट्राइकस्पेड वॉल्व होगी। ये होगा अपना लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से पल्मोनरी वेन एंटर करेगी, उसके बाद यहाँ से ओर्टा चली जाएगी, ओर्टा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हार्ट मींस ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी। यहाँ से ओर्टा चली गई है गाइस, यहाँ से ओर्टा चली गई। अब यहाँ से सुपीरियर वेना कावा एंटर करेगी एंड फ्रॉम हियर द इंफीरियर वेना कावा एंटर्स। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी मूव कर जाएगी गाइस, लंग्स के पास अगेन से वापस से चली जाएगी गाइस। सो लेट्स सी गाइस, ये हमने हार्ट का प्रॉपर डायग्राम बना दिया गाइस। सो अब ये यू कैन हैव अ स्नैपशॉट इफ यू वांट। सो बाय आगे चलते हैं, इसको लेबल करते हैं। सो ये होगी गाइस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होगी पल्मोनरी वेन। अब ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया एंड थ्रू लेफ्ट एट्रियम बाय कौन सी वेल्व होगी गाइस, यहाँ पे कौन सी वेल्व होगी, बाइकस्पेड। ओह सॉरी गाइस, ये मार्कर थोड़ा स्लिप कर गया ना। बाइकस्पेड वेल्व, सो ये बाइकस्पेड वेल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में आया। फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी सेल्स के पास किसके थ्रू जाएगा, ओर्टा के थ्रू। सो गाइस ये होगी अपनी ओर्टा। अब यहां से ये वेना कावा होगी गाइस, ये सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। ये होगी इंफीरियर वेना कावा, जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके जाएगी गाइस। फ्रॉम फिर ये ब्लड कौन सी वॉल्व के थ्रू, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा गाइस। थिंक फास्ट, किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पेड वॉल्व। ट्राइकस्पेड वॉल्व। अब ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है, अब ये वापस लंग्स के किसके पास, किसके थ्रू जाएगा गाइस, इस पल्मोनरी आर्टरी के। ये होगी पल्मोनरी आर्टरी गाइस। सो एंड द वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मींस वॉल टाइप मसल्स जो यहाँ पर होती हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल मींस इन चारों को आपस में सेपरेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। क्या होगी गाइस, ये सेप्टम। सो गाइस आई होप दैट यू आर क्लियर, कितना मींस कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया ना। सो you have to also try at your homes and you can have a snapshot if you want because it's looking so pretty. So चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले बाय द वे अपना हार्ट कितने चैम्बर्ड है गाइस, 4 चैम्बर्ड। दैट दिस हार्ट हो गया अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट।
मीन्स फोर चैम्बर्ड हार्ट है अपना। लेफ्ट साइड अपनी हार्ट की होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज द राइट साइड इज ऑफ ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस। सो रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमन का ब्लड हो गया फोर चैम्बर्ड हार्ट, मीन्स मैमल्स का, हम मैमल्स है ना, तो मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट हो गया फोर चैम्बर्ड। सो बर्ड्स और मैमल्स कितने हार्ट हो गए गाइस, कितने चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड हार्ट हो गया बर्ड्स का और मैमल्स का। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस लाइक frogs and all those things, and reptiles means sorry lizard, crocodile and all those animals. So amphibian का guys, amphibians और reptiles, एम्फीबियंस और रेप्टाइल का हो गया थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एंड फोर बर्ड्स का थ्री हो गया। अब टू किसका होगा, फिशेस का। फिशेस का होगा गाइस टू चैम्बर्ड हार्ट। सो these please remember, it is very important, it can came in CBSE class 10th board examination for 1 marks in the MCQs. so but ये चीज सोचिए आपने कि इन चैम्बर से अपनी बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या फर्क होगा अगर फिशेस के पास टू चैम्बर्ड हार्ट है, तो क्या मतलब इससे क्या मीनिंग हुआ, कोई उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है, नो, नथिंग स्पेशल इन टू चैम्बर्ड हार्ट। द थिंग इज, वन थिंग इज दैट ये टू चैम्बर्ड हार्ट है, सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद एनर्जी कम बनती है। और ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड हार्ट है गाइस, अब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट आउट रहता है, जिससे कि एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। चलो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, दैट ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो हमें ये तो पता ही है कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कुछ मीन्स ब्लड से ही रिलेटेड थिंग मिलेगी, दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर। blood pressure is the pressure exerted by blood, और भी सिंपल कहूंगा इज दैट, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन वॉल। सो प्रेशर अप्लाइड by blood on the walls of blood vessels। सो गाइस ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, नथिंग फैंसी एंड ऑल दैट। सो प्रेशर एक्सर्टेड और द अप्लाई pressure applied by the blood on the walls of blood vessels is the blood pressure। अब ब्लड प्रेशर भी तो दो तरह का होता है गाइस अपनी बॉडी में, कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज द सिस्टोलिक एंड द सेकंड वन इज द डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सो गाइस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अब ये क्या होता है। So systolic blood pressure is nothing but a pressure when hearts contract। हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को एक प्रेशर से भेजेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब वो कितना होता है 120 mm of Hg गाइस दैट जब, और सेकंड होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है गाइस, अब सिस्टोलिक तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तब का होता है, तो डायस्टोलिक मींस जब रिलैक्स करेगा तब होगा। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है मींस जब ब्लड वेसल से हार्ट में आता है तब वो रिलैक्स करता है ताकि ब्लड आ जाए। सो वो प्रेशर होगा 80
mmHg. So guys, systolic pressure when the heart gets means contract, diastolic means when heart relax. So ये pressure होगा 120 और 80. So guys that contraction and relaxation. So guys अब ये तो पता चल गया मेरे ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो हमने पता कर लिया कि 120 होता है 80 होता है. अब जो ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करें, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है. हैव यू सीन दैट डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर साइड में लेते हैं, उसे वो फुसफुस मीन्स हवा है, और यहाँ पे वो बैट लाइक स्ट्रक्चर अपने आर्म पे टाई करते हैं, एंड उस मशीन में देखते हैं कि वो मरकरी होती है इसके अंदर, वो ऊपर नहीं डिफ्लेक्ट करती है. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पिग्मो. So guys, instrument is स्पिग्मोमैनोमीटर. सो गाइज उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. सो गाइज ये तो अपना क्लियर हो गया सब कुछ यहाँ तक. तो अब हमने हार्ट की बात कर ली, ब्लड वेसल्स की बात कर ली, बस कुछ नहीं रहा, सारा हो गया. बस एक चीज रहेगी, दैट लिम्फ. अब हमने लिम्फ की बात नहीं की ना, लिम्फ क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं. तो चलो लिम्फ की भी बात कर ही लेते हैं अब. दैट व्हाट आर लिम्फ. सो लिम्फ इज yellow colored fluid. लिम्फ येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, दैट फ्लोज इन. कहां पे फ्लो करता है वो, लिम्फ वेसल्स में. कहां पे फ्लो करता है गाइस, लिम्फ वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है. अब इस लिम्फ का फंक्शन क्या होता है. लिम्फ हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. किस किस में हेल्प करता है, सो फंक्शंस. फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. So guys, ये वहां means it carry substances to those part of the body where blood vessels are unable to reach. means जहां तक blood vessels नहीं पहुंच पाती वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, लिम्फ वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करता है. ये इसका एक फंक्शन हो गया. सेकंड वन इज इट कैरी digested and absorbed so guys it carry digested and absorbed food. बस यही एक दो फंक्शन है गाइस, उससे ज़्यादा अपने टॉपिक में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है क्लास 10th के, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे गाइस. सो अपना आज का क्लास खत्म होता है. एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट blood vessels. That blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Arteries which carry oxygenated blood from heart to all part of the body. थिक वॉल्ड होती हैं, प्रेशर हाई होता है, वॉल्स नहीं होती उनके अंदर. अब सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट वेन्स. दैट वेन्स क्या होती हैं. सो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट टू द हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट. दे आर थिन वॉल्ड, वेल्स होती है उनके अंदर और प्रेशर लो होता है. फिर हमने बात की कैपिलरीज की. कैपिलरीज आर द एक्सचेंज साइट वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गेट कन्वर्टेड into the deoxygenated blood because the blood oxygen that is present in the blood is taken by the cells and they release CO2 in it. फिर उसके बाद हमने बात की कि हार्ट की बात की कि दैट हार्ट अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स का और मैमल्स का. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. उसके बाद हमने बात की गाइस की ब्लड प्रेशर आर ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक होता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, वो होता है 120 mmHg, वेयर एज डायस्टोलिक होता है जब वो हार्ट रिलैक्स करता है
एंड इट इज 80 mmHg। उसके बाद हमने लिम्फ की बात की, दैट लिम्फ येलो कलर फ्लूइड होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन और लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है एंड टेक इट सब्सटेंस टू दोज पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ब्लड वेसल्स आर अनेबल टू रीच। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। सो गाइस ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet and tell it to your friends about this channel. Okay, bye bye guys.